Friends, in our last video, we have seen how nutrition takes place in human beings. But do you know how the breakdown of glucose will take place in human being and what type of respiration takes place in human being and plants? If you want to know, then please keep going with me till the end of this video. Good morning students, welcome back to my YouTube channel Science with Hemant Rathore. In my previous video we have seen about how the nutrition takes place in humans. Today we will see the topic types of respiration and how the breakdown of glucose takes place in different organisms. So dear students, in my last video, after the video, some of the students tell me that sir, you have to also explain some of the terms in Hindi. So I will try to explain you some of the terms also in Hindi and some of the things which cannot be easily getting by any student, then we will also see in Hindi. So types of respiration means respiration ke types. But before the types of respiration, we have to discuss what do you mean by respiration. Means respiration क्या होता है. तो first we will see the definition. Definition of respiration means exchange of gases such as oxygen and CO2 takes place in any organism. So definition, क्या definition बोलती है? Exchange of gases such as oxygen and carbon dioxide takes place in any organism. किसी organism में जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रेस्पिरेशन. ओके, एंड दिस रेस्पिरेशन विल बी टेक्स प्लेस इन डिफरेंट मोड इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. क्लियर? अब हम देखें रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में. ओके, सो इट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू two types. Respiration has been classified into two types. इसको हम two types में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन है एरोबिक रेस्पिरेशन. जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वी नो अकॉर्डिंग टू द नेम एरोबिक. यहाँ पर एरोबिक का मतलब होता है द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ओके, सो डेफिनेशन इज व्हाट? अ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. एक सिंपल सी डिफिनेशन हमको याद रखना है. वी हैव टू रिमेंबर इट. एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक मीन्स एयर यहाँ पर आ चुका है. ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. और ये किस में होगा? इट टेक्स प्लेस इन, फॉर एग्जाम्पल, इन ह्यूमन सेल्स. ओके, human cells means the cells which are present in human being. Okay, that is human cells. You are very familiar with many types of cells which are present in human being. तो एक एग्जांपल है इन ह्यूमन सेल. और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन. अब देखो यहाँ पर एनारोबिक लग गया. एनारोबिक मीन्स द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द absence or in the lack of air. A respiration which takes place in the absence of air.
ओके, जो कि एयर की अब्सेंस में होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एनारोबिक रेस्पिरेशन. फॉर एग्जांपल ईस्ट सेल्स. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट सेल्स. ईस्ट सेल्स ऐसी सेल्स होती है जिनमें रेस्पिरेशन होता है बट इट टेक्स प्लेस इन द absence of air. Okay, so respiration has been classified into two types. First one is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. So this is the definition of respiration and types of respiration. You can take the screenshot of this given content. So after the discussion of respiration and types of respiration, now we will discuss our next topic, that is breakdown of glucose. The formula of glucose is C6H12O6. ठीक, ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है. ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. दिस breakdown of glucose is also known as glycolysis. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को हम ग्लाइकोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं. वी नो दैट ग्लाइकोलाइसिस, दिस टर्म इज मेड बाय टू वर्ड्स, ग्लाइको एंड लाइसिस. ठीक है, जहाँ पे ग्लाइको का मतलब होता है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन. अंडरस्टैंड? Glycolysis is also made by two words, glyco and lysis. Glyco means glucose and lysis means breakdown. मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही ग्लाइकोलिसिस होता है. इज इट क्लियर? तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए, इफ यू फेस एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस थिंग इन एग्जाम, यू कैन गिव द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो आसानी से. ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हो ग्लाइकोलिसिस मीन्स breakdown of glucose. It is made by two words, glyco means glucose and lysis means breakdown. Now this particular process is going in a different manner in different type of organism. अलग अलग organisms में ये जो process होती है वो different टाइप से चलती है. कुछ organisms में ये process in the presence of air या in the presence of oxygen होती है, and in some of the organism it takes place in the absence of or in the lack of ऑक्सीजन. तो अब हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को एक प्रॉपर चार्ट की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गिवन कंटेंट. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ग्लाइकोलिसिस, नाउ वी विल सी हाउ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अभी हमने ग्लाइकोलिसिस की मीनिंग के बारे में समझा. अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ग्लूकोज. यहाँ पर हम एक चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं. फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 और ये क्या है, इट इज़ अ 6 कार्बन मोलिक्यूल. ये क्या है, 6 कार्बन मोलिक्यूल. अब ये 6 कार्बन मोलिक्यूल ग्लूकोज जो है वो चेंज होगा पायरुवेट में. इट विल बी चेंज इनटू पायरुवेट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पायरुविक एसिड. क्या बोलते हैं, इसका अगला नाम क्या है, पायरुविक एसिड है. इसका फॉर्मूला होता है CH3COCOOH, क्योंकि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कार्बन से, 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट हियर. सो इट इज अ 3 कार्बन मोलिक्यूल. 3 कार्बन मोलिक्यूल होता है, प्लस साथ में थोड़ी सी एनर्जी भी आती है. क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6. इट इज़ अ 6 कार्बन मोलिक्यूल. ये ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा CH3COCOH. इसका नाम है पायरुवेट और पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड, इट इज़ द 3 कार्बन मोलिक्यूल.
जब ये पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है देन एनर्जी विल बी ऑल्सो रिलीज. अब इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट वेज. ठीक है, 3 डिफरेंट वे होता है. फर्स्ट जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है वो होगा इन द अब्सेंस ऑफ एयर, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम कह सकते हैं. वी कैन से दैट ये क्या होगा, ऑक्सीजन या एयर की अब्सेंस में होगा. वेयर इट टेक्स प्लेस इन ईस्ट सेल. ये कहां पर होगा, ईस्ट सेल के अंदर. अब जब पायरुवेट ब्रेकडाउन होगा ईस्ट सेल में तो इससे कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे. इट विल फॉर्म अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी. मेरी बात समझ में आ रही है. जब इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट सेल में पर्टिकुलर ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट का, देन इट विल फॉर्म व्हाट, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज C2H5OH. माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH. इट इज द फर्स्ट वे ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. अब सेकेंड जो है, सेकेंड होगा इन लैक ऑफ ऑक्सीजन और एयर. अगला जो पाथवे होगा वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में या कमी हम इसको बोल सकते हैं. इट इज कॉल्ड व्हाट, लैक मीन्स कमी. ओके, इट विल टेक्स प्लेस इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन और एयर. वेयर इट विल टेक्स प्लेस, इट विल टेक्स प्लेस इन मसल सेल्स. ये कहां पर होगा, ये कहां पर होगा, मसल सेल्स में होगा. इज इट क्लियर. आफ्टर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इट विल फॉर्म लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. इज इट क्लियर. क्या क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. नाउ यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड. तो मैं आपको बता दूं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CHOH COOH. याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड इज CH3CHOH COOH प्लस एनर्जी रिलीज होगी. और लास्ट है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा. ये कहां पर होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया, का होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज द सेल ऑर्गेनल ऑफ ह्यूमन सेल. सॉरी, ओके, ह्यूमन सेल वी कैन राइट. ओके, ह्यूमन सेल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. इट इज सेल ऑर्गेनल ऑफ ह्यूमन सेल. वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे. इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी. ठीक, माय डियर स्टूडेंट, कौन कौन सी चीजें बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2O बनेगा और एनर्जी बनेगा. इज इट क्लियर. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, रेस्पायरेशन. We also seen in our previous class about respiration. Respiration means the particular process in which glucose will be break down into carbon dioxide, water and energy will be released. इसको हम क्या कहते हैं, respiration. क्योंकि ये जो ग्लूकोज है इसका ब्रेकडाउन डिफरेंट वेज में होता है और डिफरेंट पाथ के थ्रू होता है. ओके, जैसे हमारे पास फर्स्ट है तो ये फर्स्ट रिएक्शन का पाथ हो गया ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से अल्कोहल. सेकंड पाथ हमारे पास हो गया ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से
लैक्टिक एसिड, और थर्ड पाथ हो गया ग्लूकोज से पायरुवेट और पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। इसलिए हम इसे कंबाइंडली बोलते हैं पाथवेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ glucose. Clear, my dear students? Did you understood? So it is called pathways of breakdown of glucose. It is very very important question, and one more thing is that many of the question will be formed on the basis of this chart. You have to learn it well. You can take the screenshot of this given content. In the end of the breakdown of glucose, we know that some of the energy will be released, but we know one thing, that in the case of aerobic respiration more energy will be released. जब respiration एयर के प्रेजेंस में होता है तब ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस एनर्जी। तो दिस एनर्जी विल बी यूज इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस एनर्जी का यूज़ कहाँ होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में होता है। बट जब इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती तब ये एनर्जी एटीपी के फॉर्म में कलेक्ट हो जाती है। ओके, द एनर्जी which is released in the end of breakdown of glucose will be stored in the form of ATP molecule। ठीक है, अगर एनर्जी का यूज़ किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस में नहीं हो रहा हो तो ये एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। नाउ एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। And it is the energy currency of cell। हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन हो या होना हो या कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होनी हो, देन दिस एटीपी विल बी यूज एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जब भी हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ये पर्टिकुलर एनर्जी यूज हो जाती है। क्लियर? नाउ हाउ दिस एटीपी विल फॉर्म? दिस एटीपी विल फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एडीपी। एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इज इट क्लियर? ये एटीपी कैसे फॉर्म होता है? एटीपी विल फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एडीपी। एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जब ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होते हैं देन इट विल मेक व्हाट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड एटीपी इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल ऑफ द सेल। एटीपी को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल ऑफ द सेल। एंड द लास्ट वन रिएक्शन, इसकी रिएक्शन क्या होगी? When ADP react with inorganic phosphate, it will form ADP phosphate linkage or ATP। Is it clear? समझ में आ गई मेरी बात? ये तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हुआ। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? ADP phosphate linkage and ATP will be formed। Okay, it is called what? ADP phosphate linkage।
Okay, it is called ADP phosphate linkage or ATP phosphate complex. Okay, it is better to write. It is called ADP phosphate complex and it is called inorganic phosphate. Inorganic phosphate. You can take the screenshot of this given content. Now we will discuss some of the questions related to this topic. इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ एरोबिक रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एन एरोबिक रेस्पिरेशन. एक क्वेश्चन ये बन सकता है 10th बोर्ड के हिसाब से, बहुत सही क्वेश्चन है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन से डिफरेंट होता है. तो हमको पता है, वी नो दैट एरोबिक रेस्पिरेशन मींस द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. जो एयर के प्रेजेंस में होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन मींस द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, इट टेक्स प्लेस इन द सेल और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरली ईस्ट सेल्स में होता है. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनते हैं. तो वहीं दूसरी तरफ और इन अदर हैंड व्हेन द ग्लूकोज विल ब्रेक डाउन इन ईस्ट सेल, जब ईस्ट सेल में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो उसमें क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा या एथेनॉल बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. तो इस तरीके से हम एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन डिफरेंट pathways of breakdown of glucose. ओके, क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स है जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में डिफरेंट पाथवेज में फॉर्म होते हैं. सो वी नो वेरी वेल, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन सेल जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है. इन द केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा. और इसमें लास्ट में 2 प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. एंड इन अदर हैंड अगर ये पर्टिकुलर रेस्पिरेशन ईस्ट सेल में होता है तो ईस्ट सेल में क्या होगा, इन दी एंड व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी विल बी फॉर्म. अगर रेस्पिरेशन मस्कुलर सेल्स में होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी से, then what will be formed, lactic acid and energy will be formed. Some of the question will be formed, they can ask what is the formula of lactic acid or what is the formula of pyruvic acid, so you have to know very well. Thank you so much for watching my videos. If you really like my videos, please subscribe my YouTube channel Science with Hemant Rathore और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, those who can't afford expensive coaching classes and cannot pay the fees. If you have any doubt, you can ask me in comment box. Thank you.